Let's begin with the second part of the lesson quality. I cannot forget that day when on which I had the occasion to say to him, Mr. Giesler, the last pair of boots creaked. अब राइटर यहाँ पे इस सेक्शन में अपने कुछ इंसिडेंट्स शेयर कर रहा है जिसमें उसने मिस्टर गीजलर के पैशन को देखा उनके काम की तरफ। द फर्स्ट इंसिडेंट इज वो मिस्टर गीजलर के पास जाते हैं एंड ही सेज, मिस्टर गीजलर, जो बूट आपने मुझे दिए थे दे क्रीक्ड, दे वर मेकिंग नॉइज, दे वर मेकिंग साउंड। He looked at me for a time without replying as if expecting me to withdraw or qualify the statement. Then said, "It shouldn't have creaked. It did, I'm afraid." मिस्टर गीजलर ने जब ये बात सुनी कि उनके शूज़ क्रीक कर रहे थे, he went blank. He looked at the writer in a way that as if he wanted him to withdraw his statement. कि आप अपनी बात वापस लो, ऐसा हो ही नहीं सकता. And he was this shows that he was so confident about his work कि उनका काम इतना अच्छा है कि वो गलत हो ही नहीं सकता. He said it shouldn't have creaked. ऐसा होना तो नहीं चाहिए. But the writer said ऐसा हुआ. It did. You got them wet before they found themselves. He said कि क्या तुमने उन्हें गीला कर दिया था? You got them wet? I don't think so. At that, he lowered his eyes as if hunting for the memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. राइटर ने जब डिसअग्री किया कि नहीं, मैंने उन्हें गीला नहीं किया था, so Mr. Giesler lowered his eyes. He felt ashamed of his work कि भाई मुझसे गलती हो गई, और वो इतने दुखी थे that even the writer started feeling sorry for him. The man felt sorry कि मैंने ये कह क्यों दिया इनको. Send them back, I'll look at them. Some boots are bad from birth. If I can do nothing with them, I'll take them off your bills. And he was so responsible for his work. उसने ये नहीं कहा कि भाई हो जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. He said, bring them back. उन्हें वापस ले आओ और मैं उन्हें आपके बिल में से हटा दूंगा. Means I'll refund. मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा. Once, only once, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." Second incident वो बताते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार, once only, absent-mindedly means उसे ध्यान नहीं रहा उस राइटर को, और वो मिस्टर गीजलर की शॉप में किसी और फर्म के खरीदे हुए शूज़ पहन के चला गया. मिस्टर गीजलर इतना हर्ट हुए दैट ही टुक हिज ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन डिड नॉट शो हिम एनी लेदर. उसे लेदर कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि आपको जब पहचान ही नहीं है लेदर की, आप कहीं से कुछ भी खरीद के पहन लेते हो, तो फिर हम आपको लेदर क्यों दिखाएं. ही वॉज एक्चुअली हर्ट. बट फाइनली ही सेड, दोज आर नॉट माई बूट्स. वो खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाए और उन्होंने कहा ये मेरे बूट्स तो नहीं है. द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर, नॉट ऑफ सोरो, नॉट इवन कंटेम्प्ट, बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. वो गुस्से में नहीं थे, दुखी आवाज़ भी नहीं लग रही थी, कंटेम्प्ट, वो बुराई भी नहीं कर रहे थे, बट कुछ तो था जिसने राइटर के ब्लड को फ्रीज कर दिया. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उन्होंने वहाँ पे सीधे उस जगह पे उंगली रखी उन बूट्स में, लेफ्ट पैर पे, जहाँ पे वो हर्ट कर रहे थे. मीन्स उन्होंने सिर्फ देख के पहचान लिया कि ये शूज़ कहाँ अनकम्फर्टेबल हैं. And he said, "It hurts you there. Those big firms have no self-respect." And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of a trade. He says, "It hurts you there." उन्होंने पहचान लिया कि यहाँ दर्द करता है तुमको. Those big firms have no self-respect. This line is very important because this shows कि अगर आप अपने काम की इज्जत करते हो, आप खुद की इज्जत करते हो, तो आप कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसमें दूसरे को कहने का मौका मिले, दूसरे को शिकायत का मौका मिले. Because you love your work, you will give your 100% to it. And if you're giving your 100% to your work, there will be no fault, no flaws in that.
So he said बिग फर्म्स की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो कुछ भी बना के लोअर क्वालिटी भी बेच रही हैं, लेकिन इस बात से उनके मन में जो बहुत दिनों से चल रहा था वो सब बाहर आया, एंड ही डिस्कस्ड कि कितनी हार्डशिप्स वो फेस कर रहे हैं अपने काम में. हाउ, क्या हार्डशिप्स आ रही हैं? ही सेज दिस ऑल. They get it all. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this. Presently, I have no work. Every year, it gets less. And now he's saying, like, उनका काम बहुत ख़राब चल रहा था. And he said, बिग फर्म्स को सब कुछ मिल जाता है. वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ले रही हैं, ब्रांड वैल्यूज़ हो रही हैं, क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और वो इमीडिएटली बना के दे रही है. लोगों में पेशेंस ख़त्म हो रहा है, उन्हें तुरंत चाहिए चीज़ें. सो ही सेज कि उनको सब कुछ मिल रहा है और आज ये कंडीशन हो गई है, आई हैव नो वर्क. एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी. एंड लुकिंग एट हिज लाइन्ड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hair there seemed suddenly in his red beard. He says, राइटर ने नोटिस किया आज. अभी तक उसने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था कि उनके स्ट्रगल ने उनके फेस पे रिंकल्स बढ़ा दिए, मतलब वो अपनी एज से ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं. स्ट्रगल डेफिनेटली मेक्स यू ओल्ड, मेक्स यू वीक, और वो अपनी एज से ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during that next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई मैंने ये बूट्स क्यों ख़रीद लिए, मजबूरी थी, लेकिन उनके फेस और उनकी आवाज़ ने इतना इम्प्रेशन उसके ऊपर छोड़ा, उसको खुद को इतना दुखी कर दिया दैट ही वांटेड टू हेल्प देम. सो ही ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स, बट अगेन द सेम प्रॉब्लम, द बूट्स लास्टेड लॉन्गर देन एवर. बहुत चलते थे उनके बूट्स, दे वर नॉट टेम्पररी बूट्स. सो द राइटर कुड नॉट गो टू हिम फॉर 2 years. 2 साल तक फिर जाने का मौका ही नहीं मिला. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling the piece of leather. Now he goes, after 2 years he goes to him. He noticed कि अब उनका बड़ा भाई लेदर पे काम कर रहा है. अभी तो कौन, छोटा भाई करता था और बड़ा भाई छोटे भाई से पूछ के काम करता था. But this time the elder brother was handling a piece of leather. Well, Mr. Giesler, I said, how are you? He came close and peered at me. Now see, Mr. Giesler से जब उसने कहा how are you, then Mr. Giesler was not able to see him properly. He came close, he peered. Peered होता है when you try to look at something carefully. आप बहुत आँखें छोटी करके आप बहुत ध्यान से कोई चीज़ देखने की कोशिश करते हो. And then I'm pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. अब वो जिसे एल्डर ब्रदर सोच रहा था वो यंगर ही था, बिकॉज हियर ही इज मेंशनिंग माई एल्डर ब्रदर इज डेड. उसकी डेथ हो चुकी है, मैं ठीक हूँ. एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वॉर्न. वाकई वही थे, लेकिन कितने बूढ़े लग रहे थे. एंड नेवर बिफोर आई हैड हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर. मच शॉक्ड आई murmured, oh, I'm sorry. Yes, he answered, he was a good man. He made good boot, but he is dead. And he touched his top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. Such a painful scene where a person is mentioning the death of his brother. वो बूढ़ा हो चुका है and he is saying, do you want any boots? क्या आप कुछ boots लोगे? He held up the leather in his hand. उसे बता रहा है ये बहुत अच्छा है. It's kind of pleading कि आप ले लो, अच्छा है boot piece. So it shows कि वो कितना
प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, मे बी ही वॉज स्टार्विंग, हो सकता है उनके पास इतने पैसे भी ना हो कि वो खाना खा सकते हो. I ordered several pair. The writer was a good man. He wanted to help. So he ordered several pair. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर फिर दिए और वो इतने अच्छे ऑब्वियसली बनते थे कि भाई फिर बहुत सालों तक आना नहीं हो पाया उनके पास. It was over a year I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. He says, एक साल के बाद मैं वापस आया. And the first shop he went to his friend, वो अपने दोस्त के पास जाता है, वही मिस्टर गीजलर. He says कि मैं एक 60 साल के बूढ़े को छोड़ के गया था और मैं एक 75-year-old बूढ़े के पास वापस आया हूँ सिर्फ एक साल में. This means मिस्टर गीजलर इतने बूढ़े लगने लगे थे सिर्फ एक साल में, और वो उसे पहली बार में पहचान भी नहीं पाए. उनकी याददाश्त भी इतनी कम हो गई थी. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? बट उन्हें क्या याद था? मैं बूट्स बनाता हूँ. एंड ही एक्चुअली वर्शिप्ड हिज वर्क. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? आई कैन मेक देम क्विकली. इट इज स्लैक टाइम, मीन्स ये एक अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, मैं उन्हें जल्दी बना दूंगा. एंड सेड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड. द राइटर वॉज सो मच हर्ट by seeing Mr. Geisler in such a condition. He said, please please, आप मुझे बहुत सारे boots चाहिए, हर तरह के चाहिए, आप बनाइए. I had given those boots up when one evening they came. I had given up on those boots. He says कि मैं भूल चुका था, मैंने छोड़ दिया था कि वो कभी आएंगे भी मेरे पास boots, but एक दिन वो मेरे पास पहुँचते हैं. One by one I tried them in shape and fit and finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. Boots आए, उसने चेक किया, they were perfect, best ever. उसने फटाफट चेक लिखा और उसे पोस्ट किया. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. अब वो फिर एक हफ्ते बाद उसी जगह पे जाता है, लेकिन इस बार उसे वो शॉप नहीं मिलती. वो मिस्टर गीजलर को बताना चाहता था कि उनके बूट्स कितने शानदार थे, बट वहाँ पे उनका नाम ही नहीं था. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड. इन अ शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस. मिस्टर गीजलर इन? नो सर, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर. वी हैव टेकन द शॉप ओवर. नहीं, मिस्टर गीजलर तो नहीं है. जब उस राइटर ने पूछा मिस्टर गीजलर है, He said, नहीं वो तो नहीं है, लेकिन हमने शॉप ले लिया और वी कैन अटेंड यू विद एनीथिंग. आपको क्या चाहिए बताइए. Yes, yes, but Mr. Geisler, oh, dead, but I only received these boots from him last Wednesday week. Said, मुझे अभी उनके शूज़ मिले हैं. You can see the shop has changed. He said, poor old man starved himself. Slow starvation. You understand? Starvation is like भूखा रहना लंबे समय तक, उन्हें खाना नहीं मिल रहा था. द डॉक्टर कॉल्ड इट स्लो स्टारवेशन. धीरे धीरे, मतलब वो खाने के पैसे बचा के शायद काम में लगा रहे थे. यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ. वो किसी और को काम करने ही नहीं देते थे, वो सारा काम खुद करते थे. व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, इट टुक हिम सच अ टाइम, पीपल वोंट वेट. ही लॉस्ट एवरीबडी. And there he would sit, going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? He says, वो परफेक्ट थे अपने काम में, बेस्ट वर्क था उनका, लेकिन वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाए, वो मार्केट में टिक नहीं पाए, बिकॉज ही नेवर एडवर्टाइज्ड.
उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, वो हर काम खुद करते थे. ही डिड नॉट यूज़ मशीन्स, ही डिड नॉट यूज़ हेल्पर्स. सो जब लोग ऑर्डर देते तो वो टाइम पे दे ही नहीं पाते थे. सो स्लोली ही लॉस्ट एवरीबडी. बट स्टारवेशन, ठीक है, मार्केट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट स्टारवेशन, that may be a bit flowery as the saying is, but I know myself, he was sitting over his boots day and night, and very last, you see, I used to watch him. वो रात दिन काम कर रहे थे, मैं उन्हें देखता था. Never gave himself time to eat. Never had a penny in the house. All went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. उनके पास पैसे ही नहीं थे, टाइम भी नहीं था, खाने का टाइम नहीं था और पैसे भी नहीं. जितना वो कमाते थे रेंट और लेदर में चला जाता था. I don't know how he lived so long. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, he made good boots. They both agree कि वो बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन he could not survive. The chapter ends here, giving us so many questions to rethink what actually we want in life. So go through the chapter again. If you have any doubts, you can ask me.